Hello students, good morning. I am Professor Kochrekar and today I will be revising your total syllabus for mathematics SEM 1 diploma, and I will try to take the probable questions for your board exam, multiple choice questions. These types of questions will be asked. Numbers can be changed here and there. First topic we will cover is logarithm. The question, 1 mark sure it will be there, is write in the log form. This sure will be one question there. 2 raised to 5 is 32. बच्चों यहाँ बेस 2 है तो log में भी बेस 2 होगा 2, so log 32 to base 2 equal to 5. हमेशा बेस log का भी बेस होता है और पावर जो है ये पावर इंडेक्स ये आंसर होता है log का. So log 32 to base 2 is 5. उसको ट्रायंगल करो 2 raised to 5 32. यहाँ पे क्या होगा log बेस 3 होगा 81 equal to पावर होगा 4. There can be different answers. So answer is there can be different other alternative. हमें ये correct alternative चुनना है. बोलो इसको क्या होगा log बेस a, यहाँ पे भी बेस a, किसका log ले रहे हैं 1 का. So log 1 to base a, answer is 0. A raised to 0 is 1. ऐसा क्रॉस करेक्शन देखो a raised to 0 1 आना चाहिए. 3 raised to 4 81. 2 raised to 5 32. बोलो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 5 raised to 3. log का बेस 5. So log 125 to base 5, answer is 3. So that 5 raised to 3 is 125. यहाँ क्या होगा log 256 2 base 2, आंसर इज 8. 2 raised to 8 is 256. इसमें से ये प्रकार का एक क्वेश्चन 100% है. अब यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है. log a to base b m है, देन इसका मतलब है a is b raised to m. ये देखो बेस b है तो यहाँ भी बेस b होता है. इफ log a to base b m है, then a is b raised to m. m आंसर है. a is b raised to m. a is b raised to m. a is b raised to m. तो यहाँ पे log फॉर्म में क्या होगा x minus 3 is 2 raised to 4. x minus 3 is what is 2 raised to 4? 16. 2 into 2 into 2 into 2. So x is 16 plus 3. Answer is 90. यहाँ क्या होगा x plus 4 is equal to 3 raised to 2. And x plus 4 is equal to 3 square is not 6. 3 to the 6 नहीं. 3 square माने 3 into 3 क्या होगा रे? Correct 9 होगा. And x is 3 3s are 9 minus 4. And x is 5. बराबर? ये आपका क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन और ये आंसर. यहाँ पे क्या होगा आंसर बच्चों? x minus 2 is equal to 3 raised to 4. So x minus 2 equal to what is 3 raised to 4? 3 3s are 9. 9 3s are 27. 3s are 81. x equal to 83. 81 plus 2 83. ये आपका अल्टरनेटिव होगा. दूसरे अल्टरनेटिव होंगे x equal to 4, x equal to 9, x equal to 100. कुछ भी अल्टरनेटिव अदर हो सकते हैं. You have to choose the proper alternative, okay? And that is x equal to 83. यहाँ पे क्या होगा in index form? x plus 3 equal to 5 raised to 3. So x equal to 5 raised to 3 is 5 5 are 25, 5 are 125. Plus 3 will become minus 3. x become 125 minus 3 is 122. Understood? इस प्रकार आपसे सॉल्व करना है. इस प्रकार का एक प्रॉब्लम आपके एग्जाम में हो सकता है. अब यहाँ पे बच्चों व्हाट यू हैव टू डू, इनको ऊपर लाना है. ये रूल कि उसको उल्टा यूज करो. 1 अपॉन log b to base a. ऊपर जाएगा तो log a ऊपर जाएगा और बेस भी नीचे आएगा. तो so, ऊपर जाएगा तो होगा log 3 to base 6 उल्टा होगा. प्लस ये होगा log 8 to base 6 प्लस ये होगा log 9 to base 6. अब आपका रूल है log a plus log b is log a into b. log a plus log b is log a into b. So log 3 plus log 8 is log 3 into 8 और ये plus 9 है तो into 9.
तो log a plus log b plus log c is log a into b into c. हाँ, सब जगह बेस मात्र सेम होना चाहिए. या बेस कौन है 6, तो यहाँ भी बेस भी 6 लिखो. दिस विल बिकम log. अब इसको मल्टीप्लाई करो. 8 3 जा क्या है 24 into 9 to base 6. That is log. 9 4 जा 36 carry 3. 9 2 जा 18 216. So log 216 to base 6. अब उसको हम क्या कर सकते हैं? 216 नथिंग बट क्या है 6 रेज टू 3. आप कंफर्म करो 2 base 6. ये होगा 216 यानी 6 रेज टू 3. अब आपका रूल क्या है? log a रेज टू m. बच्चों जरा ये रूल देखिए. log a रेज टू m इसको बोलते हैं टापरी रूल. m तो कान के नीचे बचाओ तो m नीचे गिरेगा. m log a. log a रेज टू m क्या होगा? m log a. So log 6 रेज टू 3 क्या होगा? 3 log 6 to base 6. बट log 6 to base 6 क्या होता है? 1 होता है. log a to base a क्या है? 1. So आंसर इज 3. ओके, इस प्रकार से आंसर आएगा. अब देखते हैं इसको कितना जगह मिलता है. 1 by log 4 to base 2 is log 2 to base 4 plus log 4 to base 4. इसको उल्टा करो प्लस log 8 to base 4. ये 4 होगा. log 8 to base 4. Understood? 2 to base 4, 4 to base 4. That is equal to log. What is 2? log 2 plus log 4. log 2 into 4 into 8 to base 4. That is equal to log. What is 4 to side? 8 8 जा 64 to base 4. That is equal to log. 64 को क्या लिख सकते हम? 4 cube to base 4. The Tappary rule says log a raised to m is m log a. So log 4 raised to 3 is 3 log 4. और base is also 4. Now log मध्ये log a to base a अगर दोनों नंबर सेम है तो आंसर 1 आता है. So log 4 to base 4 is 1. So answer is 3. So इसका भी बच्चों आंसर 3 और इसका भी आंसर 3 है. Please take down it properly. रबर से कॉपी करो. प्रैक्टिस करो ये सम्स. Similar sums will be asked. Number may be changed here and there. Be ready. Now students, look at the next problem. Find x. log to base 3. बाप रे दो log. log x to base 2 is 2. देखो बच्चों पहले एक ही log सॉल्व करो. क्या रूल है? log a to base b m है. So a equal to b raised to m. a equal to a base b raised to m. तो log कुछ भी रहेगा दे ब्रैकेट में. मैं उसको ऐसा लिखता हूँ. log bracket 2 base 3 is 2. So bracket is 3 raised to 2. Log bracket 2 base 3 is 2. So bracket is 3 raised to 2. But the bracket itself is a log x to base 2. 3 square is 9. Again in exponential form. Exponential form. ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको ये बताना नहीं है. आपको क्या करना है? आपको फाइनल आंसर लिखना है. अब log x to base 2 9 है तो x कितना होगा बच्चों? 2 raised to 9. ये 2 raised to 9 आपको मिल जाएगा 512. x equal to 512. आपको दूसरा दिया रहेगा a 512, b 521, c 502, d 501. ऐसे नियर बाय नंबर दिए. आपको करेक्ट है a 512. ये आपको लिखना है. अंडरस्टूड? करेक्ट अल्टरनेटिव. आपको खाली फाइनल आंसर लिखना है. तो कमिंग हियर सिमिलर है. log of some bracket 2 base 2 equal to 2. So in exponential form, that bracket is equal to 2 raised to 2. But what is in the bracket? Inside bracket there is log x minus 2 to base 3. तो क्या हो गया? log x minus 2 to base 3. 2 raised to 2 is 4. So again in exponential form. I have seen this problem in some of the question banks. I don't remember but कोई तो कॉलेज में था. x minus 2 equal to again 3 raised to 4. So x minus 2 equal to 3 raised to 4 is 81. 3 into 3 9 into 3 37 to 3 81. तो एक कैलसी दे देगा आपको. 12 मत लिखो बाबा, 12 मत लिखो. 3 into 3 into 3 into 3 3 into 3 into 3 into 3 9 9 right. X is 81 plus 2
x is 83. आपको दूसरे ऑप्शन दिए रहेंगे A 80, B 83, C 84, D 85. तो आपको लिखना है करेक्ट अल्टरनेटिव. सॉरी करेक्ट इज B 83. अंडरस्टूड, नॉट 84. तो इस प्रकार से आपको चुनना है. समझ में आया इस टाइप के प्रॉब्लम्स. ना log x प्लस log 4 इज 2. बच्चों दोनों जगह पे बेस चेक करिए. log a प्लस log b इज log a इंटू b प्रोवाइडेड बेस सेम है. दोनों जगह बेस सेम है. सर आपने तो नहीं लिखा है. बच्चों नहीं लिखा मतलब वो e होता है. तो दोनों जगह e है मतलब बेस सेम ही है. यहाँ पे 3 मतलब बेस सेम ही है. इसका आंसर आएगा log x प्लस log 4 इज log x इंटू 4. लेकिन बेस जो है वो 3 और इक्वल टू 2. यानी क्या हो जाएगा log x इंटू 4 यानी 4x टू बेस 3 इज 2. सो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूरा स्पेलिंग यहाँ लिखा है. इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा रे 4x इज इक्वल टू बेस 3. तो यहाँ भी 3 आएगा और ये रेस टू 2 होगा. 4x इज 3 रेस टू 2. सो क्या होगा रे 4x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/4. अंडरस्टूड. ये आपको फाइनल आंसर है. आपका आंसर ए होगा 0, बी होगा 4/9, सी होगा 9/3, डी होगा 9/4. आपको चूज करना है करेक्ट आंसर 9/4. अंडरस्टूड. इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है. अंडरस्टूड. प्लीज कॉपी. Students, some changes I have made in the problems and I have made new problems for you. That 1, 2, 3, it may become the numbers are 4, 5 and 6 maybe. You please solve them and share the answer with the questions on the group. तो हम लोग डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे. ओके, प्लीज शेयर देम. हाँ, now students, some extra questions for you I am giving. These type are not asked till now in this your online test, but it may be asked. Let us prepare for more. First, now log a minus log b is log a upon b. So log x plus 2 minus log x is log x plus 2 upon x. बच्चों दोनों जगह बेस 2 है तो हमारे इधर भी बेस 2 होगा और इक्वल टू ये होगा 3. बराबर. कौन सा रूल है ये देखो. ये रूल है log a माइनस log b is log a डिवाइडेड बाय b. नाउ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये सब आपको लिखना नहीं है, आपको झटपट सॉल्व करना है. क्या होगा रे x प्लस 2 अपॉन x इक्वल टू 2 रेज टू 3. दिस इक्वल टू 2 रेज टू 3. So x plus 2 upon x is what is 2 raised to 3? It is 2 into 2 into 2, not 2 plus 2 in 2 raised to 3 6. 2 to the 4 to the 8. So x plus 2 equal to 8 into x is 8x. So 2 equal to 8x plus x वहाँ गया तो minus x. So 2 equal to क्या होगा 7x. So 2/7 is x. इन x का वैल्यू आएगा 2/7. आपको फंसाने के लिए अलग आंसर देंगे. वो 7/2 देंगे, -7/2 देंगे, -2/7 देंगे, 2/7 देंगे. तो आपको करेक्ट आंसर उसमें से चूज करना है. Now coming here is log x square plus 6x plus 28 is 10. So x square plus 6x plus 28 is base 10 है और raised to 2. So x square plus 6x plus 28, 10 का स्क्वायर है 100, 10 into 10. x square plus 6x plus 28 minus 100 is 0. x square plus 6x minus 72 is 0. 28 minus 100. now बच्चों minus 72 का ऐसा फैक्टर बोलो कि जिसकी सम प्लस 6 है. ऑफ कोर्स 12 6 जा 12 प्लस और 6 क्या होगा माइनस. 12 और माइनस 6 का प्रोडक्ट है माइनस 72 और दोनों की सम है 6. तो ये होगा x plus 12 and x minus 6 is 0. so answer x plus 12 is 0 or x minus 6 is 0. Answer x is minus 12 or x is 6.
बी केयरफुल, जब भी लॉग में निगेटिव आंसर आता है तो पुट करके देखिए कोई निगेटिव तो नहीं होता, कि लॉग ऑफ निगेटिव नंबर इज व्हाट नॉट डिफाइंड। लॉग के सामने निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, लॉग लेने के बाद आंसर निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी पुट करो, 6 करो, -12 करो, स्क्वायर सॉल्व करो, आंसर निगेटिव नहीं आएगा, इसलिए दोनों आंसर करेक्ट है। -12 भी करेक्ट है और 6 भी करेक्ट है, अंडरस्टूड। क्योंकि ये पुट करने के बाद लॉग यहाँ पे नंबर नेगेटिव नहीं आ रहे, आप चेक कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट सम है log x plus log x plus 2 is 3. What is log x plus log x plus 2? That is log x into bracket x plus 2 base 2 is 3. पहला रूल है log a plus log b is log a into b. तो यहाँ होगा x into x plus 2 equal to एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये base 2 होगा और base 2 3 होगा, यानी x square plus 2x। बच्चों x से मल्टीप्लाई करो, x into x square plus x into 2 2x equal to 2 cube is 8, x square plus 2x minus 8 0। अब आपको -8 के फैक्टर निकालने हैं। -8 के फैक्टर जिसकी सम 4 है, 4 and -2, बिकॉज 4 और -2 दोनों का प्रोडक्ट -8 है, लेकिन सम +2 है, 4 -2। इसके फैक्टर है x plus 4 into x minus 2 equal to 0, यानी x plus 4 is 0, x minus 2 is 0, यानी x is -4 और x is 2। आपको आदत होनी चाहिए चेक करने के लिए, जब भी आंसर नेगेटिव आता है आप वहां डालना चाहिए। अगर x को -4 हो गया, अरे ना रे बाबा ना, अगर x -4 हो गया, ये होगा log -4 to base 2, उधर ही ठप्पा पड़ेगा, रिजेक्ट। एक रिजेक्ट, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, एक भी रिजेक्ट हो गया तो काफी है, लेकिन फिर भी -4 + 2 -2 रिजेक्ट ठप्पा पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे x इक्वल टू -4 रिजेक्ट किया, क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, एक ही आंसर आएगा x इक्वल टू 2। तो आपको आंसर में यहाँ देंगे x is 2, दूसरा देंगे x is -4, x is 1, x is 5, आपको सब रिजेक्ट करना है, खाली एक ही आंसर आएगा x is 2। यहाँ भी रिजेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि -12 पुट करने के बाद -12 का स्क्वायर है 144, -12 into 6 है -72 प्लस 28, ये टोटल सम ऑलवेज पॉजिटिव आता है, इसलिए रिजेक्ट होने वाला नहीं है। बी केयरफुल, मैंने क्या बोला आप बराबर से ध्यान दीजिए, अंडरस्टूड। ओके, इस प्रकार से रेयरली ऐसा आ सकता है, बिकॉज उनको लगता है इसको ज्यादा टाइम बच्चों का जाएगा, बट 2 घंटा तो है, देखते हैं, तैयारी करके जाओ। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉग। जिसको और ज़्यादा पढ़ना है, मेरे नोट्स है उसमें मैंने पढ़ा है लॉग अच्छे से डिटेल में, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ मौजूद है, अंडरस्टूड। विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट टॉपिक नेम इज डिटर्मिनेंट। Evaluate. Now you have to solve using any row or column. So let us use first row. तो पहला एलिमेंट लेने का एज इट इज, 1 जिस रो या कॉलम में है उसको छुपाने का होता है, इस रो और कॉलम को छुपा दो, और बचा क्या 0 -1 5 3 माइनस, नेक्स्ट इज 2 छुपा दो 4 1 5 3 प्लस माइनस प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट -3। देखिए आपको लिखना है प्लस माइनस प्लस, बाद में जो एलिमेंट है उनके साइन प्लस है तो प्लस है तो प्लस लिखा, माइनस है तो माइनस है, वो जो है वो साइन लिखने का। -3 जिस रो और कॉलम में उसको छुपा दो, आंसर आएगा 4 1 0 -1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? दिस 0 into 3 0 माइनस -1 into 5 -1 -2 into 4 into 3 12 माइनस 1 into 5 5 प्लस माइनस -3 into 4 into -1 -4 माइनस 1 into 0 is 0। अब माइनस 5 होगा, 12 - 5 होगा 7, -4 - 0 होगा -4, ये होगा 5 -14 प्लस 12 5। What is -14 plus 12 is -2, आंसर will be nothing but 3। ऐसे सॉल्व करना है। एक आध दूसरा डिटरमिनेंट हम ले सकते हैं, आपको पता है डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है।
इस प्रकार से सॉल्व करो। दूसरा एक कर लेते हैं, -2 -3 -5 0 1 4 1 -1 3 1 -1 -2। चलो बच्चों फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं। पहले एलिमेंट लेने का जैसा है वैसा -2, सप्रेस जिसमें वो रहता है उस रो और उस कॉलम को छुपा दो। 1 -1 4 -2 माइनस, बीच में हमेशा माइनस लेगा। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस है तो माइनस लेगा, 3 तो 3 छुपा दो जिस रो में वो रहता है और जिस कॉलम। 0 1 4 -2 प्लस माइनस होने दो उसको, माइनस तो माइनस प्लस टू प्लस लिखेगा, ये साइन प्लस लिखो, उसका साइन उसके साथ आएगा। -5 को छुपा दो, 0 1 -5 को छुपा दो, 1 -1 that is equal to -2 into 1 into -2 is -2 minus -1 into 4 is -4। दोनों माइनस एक साथ नहीं लिखना इसलिए बीच में ब्रैकेट करो, माइनस माइनस प्लस 3 0 into 0 1 into 4 is 4। जरा फास्ट करो, आपको सबको पता ही है, प्लस into माइनस -5 0 into 0 -1 1 जा 1 -2 into -2 minus minus plus 4 plus 3 into 0 minus 4 minus 5 into -1 minus into 4 minus 2 is 2 4 into 3 12 minus plus 5 you have -4। what is -12 plus 5 is -7 -4 -7 is -11। तो आपको ये एक हर बार का क्वेश्चन आ सकता है डिटरमिनेंट का, और आपको इक्वेशन सॉल्व करने को आ सकते हैं। तो बच्चों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप कैमर रूल इतना बड़ा मत यूज करो, मैं आपको आइडिया बताता हूं। प्लीज कॉपी दिस। Now students, the next sum before you is solve 3 equations are there and solution पूछा, करेक्ट। बच्चों अगर आप क्रैमर रूल से सॉल्व करोगे आपके 10 मिनट जाएंगे, परवड़ने वाला नहीं है, बिकॉज यह प्रोसेस को मार्क नहीं है, या रिजल्ट को मार्क है। तो आइडिया बताता हूं, और आपको देखो इक्वेशन सिंपल है, x + y y + z z + x। आप पहला सॉल्यूशन लीजिए 1 2 3, यानी पहला x होता है, दूसरा y, तीसरा z। फटाफट चेक करो, x + y यानी 1 + 2 3, पहला करेक्ट हो गया। y + z यानी 2 + 3, व्हाट इज 2 + 3 5, y + z 5 नहीं, क्या है 0, चलो पहला रिजेक्ट हो गया। दूसरा देखो x y z 2 + 1 3 बराबर है, प्लस y + z लिखो 1 + 0 0 नहीं है, 1 + 0 1 है, या 0 लिखा है, यानी ये भी रिजेक्ट हो गया। तीसरा देखो 1 - 1 2, x + y 1 और -1 को ऐड करो, 1 और -1 की सम 0, या क्या लिखा है 3। एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो गया, मतलब वो पूरा सॉल्यूशन रिजेक्ट है। तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये देखो 2 और 1 क्या है 3, y - z 1 - 1 क्या है 0, x + z 2 - 1 क्या है 1। देखो इस सॉल्यूशन ने तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई किया, मतलब दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और मैंने जानबूझ के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया आपको, एग्जाम में आपको ये टाइप का ही आने वाला है, आपको फटाफट रिजेक्ट करने को मजा आएगा। और अगर आपको सॉल्यूशन ये पहला लिखा है, सपोज यहाँ 2 1 -1 पहले लिखा है, और उसने अगर सेटिस्फाई किया, तो फालतू गधे जैसा बाकी चेक करने को बैठने का नहीं, जो पहला सेटिस्फाई तीनों को करेगा वो सॉल्यूशन है, बाकी चेक करने के नहीं। मैंने जानबूझ के उसको लास्ट लिखा ताकि आप तीनों ट्राई करो। अब यहाँ दिखाओ x + y + z, x है -1, y है -2, z है -3, अरे -6 है, चलो रिजेक्ट, ये तो +6 है। ये देखो 2 × 1 ये है 2, ये है -2, ये है -3, 2 - 2 कैंसिल, आंसर 3 नहीं आता, रिजेक्ट। अरे सॉरी, पहला तो रिजेक्ट हो गया, पहले में रिजेक्ट है। दूसरा देखो 1 - 2, 1 - 2 कौन है -1 + 3 नहीं है, 6 नहीं है, तो दूसरा भी रिजेक्ट। तो पहले इक्वेशन में रिजेक्ट हो रहे सब। 1 2 3 देखो 1 + 2 + 3, व्हाट इज 3 + 2 5 + 1 6। तो पहला सेटिस्फाई किया तो दूसरा चेक करना पड़ेगा, एकदम घाई मत करो। 2 × 1 2 + y is 2 -3, 2 + 2 4 - 3 1, चलो एक्सेप्ट किया। ये देखो ये सबको एक्सेप्ट कर रहा है। 1 2 3, x को 1 पुट करो, यहाँ पे y को 2 पुट करो -3, इसको देखो x को 1 किया, y को
2 किया, z को 3 किया, 1 + 2 - 3 0। मतलब इस इक्वेशन, इस सॉल्यूशन ने सबको सेटिस्फाई किया है, मतलब यही असली सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड और नॉट? किसी एक सॉल्यूशन ने तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई किया तो वो सॉल्यूशन है। किसी एक सॉल्यूशन में एक भी रिजेक्ट किया तो बाकी दो इक्वेशन चेक करने का नहीं। अगर पहला सेटिस्फाई किया तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा, तो वो सॉल्यूशन है। एक भी रिजेक्ट हो गया तो बाकी सॉल्यूशन चेक करने का नहीं, उस सॉल्यूशन को रिजेक्ट करने का। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज कॉपी। नेक्स्ट व्हाट इज ए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल? यू नो क्वाड्रिलेटरल इज अ चौकोन, चार साइड वाला। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। एक वो बहुत बार पूछते हैं। ओके, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज होता है क्या? हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हाँ, मेरी इसमें फॉर्मूला ऐसा है, हाफ 1 1 1 x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3। कोई भी आप फॉर्मूला चलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला में हाफ आना चाहिए, हाफ। उसके बाद ये बुक में ये दिया है फॉर्मूला, तो आप ये याद रखो, x1 x2 x3 दिया रहेगा। उसके बाद x1 के बाजू में y1, x2 के बाजू में y2, x3 के बाजू में y3 और 1 1 1। ये आंसर आपका रहेगा। हाफ होना जरूरी है। ओके, इसके बाद कुछ आपको सॉल्यूशन है। x + 2y is 4। ओके, एंड 3x - 5y = 1। इसके सॉल्यूशन आपने दिए 2 1 1 2 2 - 1 एंड -1, -2। हमारा बच्चों ये सॉल्व करने से अच्छा है पुट द सॉल्यूशन। चलो 2 1 पुट करो पहले। 2 1s are 2 प्लस यहाँ पे x को 2 पुट करो, 2 1s are 2, 2 + 2 4। तो पहला इसने सेटिस्फाई किया, और x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया। 2 + 2 × 1, 2 + 2 4। अब यहाँ x को 2 पुट करो, 3 2 6 माइनस ये 5y 5 is 1। तो 2, 1 ने दोनों को सेटिस्फाई किया, तो यही सॉल्यूशन। बाकी चेक भी मत करो, करना है तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा आंसर पुट करके। अंडरस्टूड? तो ये सॉल्यूशन उसका मिल गया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि फाइंड x इफ पॉइंट्स, कौन है रे बच्चा, -5 7 x, 5 एंड 0, 2 ये कोलिनियर है। ओके, अगर ये बच्चों पॉइंट कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट क्या होगा रे? -5 7 हाँ x 5 0 2 एंड 1 1 1। यही पकड़ा मैंने, हाफ लेने की जरूरत नहीं। ये डिटरमिनेंट ओके = 0 आएगा। तो इसको सॉल्व करो तो क्या होगा रे? -5 इंटू, कैसा सॉल्व करोगे? डायरेक्ट सॉल्व करो। -5 इंटू 5 1s are 5 -2 1s are 2, -7 इंटू, कैसे सॉल्व करोगे? इसको छुपाने के बाद -7 को छुपाया, x 1s are x माइनस 0 इंटू 1 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, +1 इंटू, छुपा दो 1 को, x इंटू 2 क्या होगा रे? 2x माइनस 0 इंटू 5 0 = 0। आप आराम से सॉल्व करो इसको। तो ये होगा -5 इंटू 3 -7 इंटू x +1 इंटू 2x = 0। -5 इंटू 3 क्या होगा? -15 -7x +2x = 0। -7 + 2 क्या होगा रे? -5x, -15 वहां गया तो क्या होगा? +15। x होगा 15 -5 यानी -3। तो उधर x -3 सॉल्यूशन आने वाला है। अंडरस्टूड? इस प्रकार से सॉल्व करने का। फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बच्चों? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ऑलवेज 0 होगा। तो फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 0। ये आपको सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? कुछ लॉग के थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे दिए उन्होंने क्विकली, अभी टाइम है तो। लॉग
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस लॉग वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस लॉग जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ये होगा log a प्लस log b प्लस log c इज log a इंटू बी इंटू सी, दैट इज इक्वल टू log ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, नीचे x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई होगा वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये कैंसिल होंगे। आंसर आएगा log 1। log 1 टू इनिशियल बच्चों क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ उन्होंने डिटर्मिनेंट को भी बोला है, डिटर्मिनेंट x 4x इक्वल टू 0 और बोला है सॉल्व करो। ये करो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 16 इज 0, एक्स स्क्वायर इज 16, स्क्वायर रूट लिया, x इज प्लस 4 और x इज माइनस 4। तो इस प्रकार के ये छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ट्रायंगल कोलिनियर का आ सकता है, कोलिनियर का मतलब डिटरमिनेंट 0 करने का है। इस प्रकार से छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। प्लीज सॉल्व देम। अंडरस्टूड।